dear economics students. Myself Nishi Goyal and I am an economics tutor from last 25 years. And I teach students of plus 1 and plus 2 class. My subjects are economics and business studies as I am a commerce graduate and masters in economics. Today I am going to discuss about the impact of COVID-19 on Indian economy. As we all know, this pandemic has affected our life enormously. It has affected each and every sector of the world economy. But as far as we are concerned, we have to discuss its impact on Indian economy. Positive and negative, both go side by side. And we all know that we have to discuss all the aspects of any problem. And now in today's lecture, we should discuss its positive as well as negative aspects. In this way, we should discuss and we should be clear by the balanced view of this. Now, I am going to start with the adverse impacts of this. वैसे तो इस वैश्विक महामारी ने हर किसी को प्रभावित किया है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन. दैट मीन्स द वर्किंग पॉपुलेशन हु कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी. उसमें से कौन कौन आते हैं? उसमें से आते हैं हमारे डेली वेज अर्नर, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, सैलरीड पर्सन, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट हाउसेस वगैरह. तो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे इसको कितना इम्पेक्ट किया. द फर्स्ट पॉइंट इज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अनएम्प्लॉयमेंट. जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए इससे वो है हमारे डेली वेज अर्नर्स और साइड बाय साइड सैलरीड पर्सन. द डाटा फॉर दैट इज जो हमारा सबसे स्टार्टिंग लॉकडाउन पीरियड में मार्च में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.7%. बट ड्यू टू लॉकडाउन दिस रेट रोज टू 26% in April. And this become 14 crore people lost their employment. And while others cut their salaries. The second point that is got impacted is businesses. 53% of businesses got affected by this pandemic. आप सबने अपने आसपास देखा होगा कि जो भी जहां कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी जाने वाले हैं, वो कहीं नहीं जा पाए ड्यू टू लॉकडाउन. सब अपने अपने घर पे थे, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है. तो इन सबको मिलाकर जो डेटा बनता है वो है 53%. जब कोई कहीं जाएगा नहीं तो वो अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेगा? इन दिस वे 53% ऑफ बिजनेसेस गॉट इफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक. द नेक्स्ट पॉइंट इज young startups. Young startups. In the recent past, Government of India has launched Make in India campaign, under which many young startups came into being. And these, as we know, all know, कि जब कोई भी चीज अपनी ग्रोइंग एज में होती है तो उसको फंड्स की जरूरत होती है. बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक देयर इज अ fall in funds in economy, and due to lack of funding these working capacity of these young startups got affected. The next point is stress on supply chains. The importance of supply chain in any economy can be understood from this, that importance of blood vessels in human body. We all know supply chain includes the purchase of raw material to the availability of finished product to the end consumer. When all the supply chain is not working due to lockdown, the full supply chain system got disturbed, by which the business operations got affected. Not only the business operation, but any common man got disturbed from this stress. The next point is गवर्नमेंट इनकम. गवर्नमेंट इनकम कहां से आती है?
गवर्नमेंट इनकम जो है वो है फ्रॉम टैक्स कलेक्शंस, सम टाइप्स ऑफ फीस एंड फाइन्स, एंड इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक transportation sources, railways, airways, buses, etc. And the other one source is electricity boards, etc. But due to lockdown, जब ये सारी चीजें बंद हैं, तो गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी? रेलवेज बंद है, या सारी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद है, इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है, तो गवर्नमेंट को इनकम कहां से आएगी? और जब हमने पहले पढ़ा कि बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, बिजनेसेस बंद होने के कारण गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में काफी कमी आई। टैक्स कलेक्शन में कमी आई, तो जब बिजनेसेस बंद हैं, टैक्स कलेक्शन में कमी तो आई ही आई, बट साथ में क्या हुआ, अपने इंडिविजुअल्स की इनकम कम हो गई, जिसके कारण अपनी एग्रीगेट डिमांड कम हुई। जब इनकम कम हुई, उससे तो डायरेक्ट टैक्स कम हुए, मगर जब इंडिविजुअल्स की इनकम कम होती है तो उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आया। एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आना मतलब डिस्पोजेबल इनकम का कम होना, और उसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर भी इम्पैक्ट आया। दिस विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट गवर्नमेंट इनकम एंड विच फर्दर इम्पैक्ट गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म का सेक्टर तो टोटली बंद हो गया, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन सारी दुनिया थम गई, सभी फ्लाइट्स बंद हैं, सभी ट्रेन्स बंद हैं। शायद जो कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि पूरी इंडियन रेलवे की जो पूरी रेल व्यवस्था है वो पूरी तरह से बंद है। जब सब कुछ बंद है तो कोई कैसे आएगा, कैसे जाएगा? तो इस वजह से टूरिस्ट नहीं आ पा रहे, बाहर की फ्लाइट्स बंद थी तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ पा रहे। टूरिस्ट नहीं आए तो उस वजह से टूरिज्म के कनेक्ट करता ही एक सेक्टर है हमारा होटल इंडस्ट्री, वो भी पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि होटल जो है टूरिज्म से पे ही बेस्ड है। टूरिस्ट ही होटल्स में आके रहते हैं, और साथ साथ होटल्स के रेस्टोरेंट्स के साथ ही रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए, और ये सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, और जिसके क्या हुआ कि पूरा इस सेक्टर से आने वाली इनकम का भी, जो कि हमें फॉरेक्स के रूप में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज के रूप में गवर्नमेंट को मिलनी होती है, वो भी इफेक्ट हो गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। एज वी ऑल नो, देयर इज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द हॉस्पिटल्स, बट दिस all is due to COVID only. In these days, all the medical staff is treating only COVID patients or the patient who need emergency treatment. The routine patient is not entertained due to closed OPDs of hospitals as well, civil hospitals as well as private hospitals. So, due to that reason, सारा जब ये बंद है, सिस्टम ओपीडीज का बंद है, तो उससे ही रिलेटेड मेडिसिन इंडस्ट्री भी इफेक्ट होती है। डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग टू टेक मेडिसिन एट द फोन कॉल एडवाइस, नॉट टू कम एट द हॉस्पिटल। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ हार्ट पेशेंट हु नीड्स emergency to be admitted in the hospital, but due to COVID, the doctor said there is no need to come to hospital and the patient died due to heart attack. But the indirect impact is of this is COVID. हमारे पास जो रिकॉर्डेड डेटा हैं वो कोविड डेथ्स के तो हैं, मगर जो ऐसी डेथ्स जो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली दे रिलेट टू कोविड समवेयर, तो ऐसे डेटा हमारे पास नहीं है। इस तरह से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर भी पूरी तरह से इफेक्ट हो गया। इन सारी चीजों को मिलाकर जो इतना इम्पैक्ट हुआ, जो इतने बुरे प्रभाव पड़े हमारी इकोनॉमी पे, इन सबको मिलाकर अगर हम इकोनॉमिकली सोचें और इसको अगर हम डेटाज में कन्वर्ट करें, तो जो फर्स्ट हमारा 21 डेज का लॉकडाउन था, उस टाइम पे इंडिया ने एक दिन में 32,000 करोड़ खोए हैं। गवर्नमेंट को जो अपनी इंडियन इकोनॉमी का जो बिजनेस सर्कुलेशन में जो मनी होती है वो 32,000 करोड़ का एक दिन में हमारा गया है। और अगर हम इसको
इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के नाते समझें और मल्टीप्लायर के साथ देखें, तो अगर कोई भी इकोनॉमी 2 टाइम्स मल्टीप्लायर पे काम कर रही है तो ये 62,000 करोड़ पर डे का लॉस है, और अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लायर पे काम कर रही है तो ये 96,000 करोड़ का लॉस है। तो इस वजह से ये सारे बहुत ही बुरे प्रभाव पड़े हैं। बट वी ऑल नो देयर इज अ हाई टू एवरी, there is a silver lining to this all current scenario, and this silver lining is its favorable impacts। और वो कैसे हैं? हमें पता है कि इस एपिडेमिक ने जो है इसने हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसने हमें हर तरह से, हर तरफ से प्रभावित किया है, क्योंकि जहां यह हमने देखा कि इसने हम पर कितने प्रभाव डाले। इसने हर एक सेक्टर को प्रभावित किया, बट इट कांट अफेक्ट आवर स्पिरिट, आवर एस्पिरेशन। तो उसी वजह से हमने कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की कि इससे भी हमने क्या लिया। तो वही है हमारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जिनको अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करके समझेंगे। एक तो इसका सॉफ्टवेयर पार्ट कि इसने ह्यूमन बीइंग को कैसे इफेक्ट किया, दूसरा पार्ट है कि इसने इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले जो है ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग को प्रभावित किया, तो जब ह्यूमन बीइंग प्रभावित होते हैं, ह्यूमन बीइंग इफेक्ट होते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी से जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। कैसे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसिंग बेटर हाइजीन, वॉशिंग आवर हैंड्स अगेन एंड अगेन, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये जो है ये सारी चीजें किस चीज को अराइज करती हैं? बेटर हाइजीन प्रैक्टिस को। जिससे क्या है कि हमारा सारा कुछ जब सफाई होगी, क्लीन इंडिया मिशन का भी यही मोटिव था, बेटर हाइजीन। उसका भी क्या था कि बेटर हाइजीन होगी तो हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। और इस चीज को मैं अब आपको समझाऊंगी कि कैसे हमने समझना है। जब हम बेटर हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या है, कम बीमार पड़ेंगे, मीन्स लेसर डिसीजेस, जिसका क्या होगा? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा? हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी से हमारी इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी, which leads to increase in income, or when there is an increase in income, this leads to more contribution to GDP, which leads to economic growth। और ये जो है ये इन सारे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होता है। कैसे होता है? बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप। ड्यू टू लॉकडाउन हम सभी अपने घरों में बंद हैं, हम कहीं नहीं जा पाते सिवाय अपनी सोसाइटी में ही घूमने के। तो इससे क्या हुआ? वी हैव डेवलप्ड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स, एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू लेसर आवर स्ट्रेस। जब हम सबसे मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उससे जो है हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस कम होना मीन्स डिसीजेज में कमी आना। तो सेम इज अ पॉइंट विद फैमिली टाइम। जब हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैप्पीली हमारा जो है पूरा डे उनके साथ पास कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे स्ट्रेस में काफी हद तक कमी आती है, और जो रिलेट करती है बीमारियों में कमी। और बीमारियों में कमी दैट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन इनकम, विच फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। ये सारी चीजें हैं, ये ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करके इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर लिए पॉइंट्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप, फैमिली टाइम, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स कि जब हम अपनी इकोनॉमी में चल रहे हैं तो उसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये चीजें आम देखने को मिलती हैं। मगर इस लॉकडाउन पीरियड ने एयर को भी क्लीन कर दिया और वाटर को भी क्लीन कर दिया। कैसे? जब सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम काफी हद तक बंद है, तो जो चीजें, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया, सीएनजी चलाई, ई व्हीकल्स चलाई, ताकि हमारा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हो सके। मगर उन लोगों ने इतना काम नहीं किया जितना इस 21 डेज लॉकडाउन ने कर दिया। एंड गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बजट बनाए कि अपनी नदियां साफ हो सके, मगर वो भी अपने इस 21 डेज के फर्स्ट लॉकडाउन ने काफी हद तक क्लीन कर दी, जिससे कि क्या हुआ, पोल्यूशन में कमी आई। और अब पोल्यूशन का रिलेशन कैसे हुआ इकोनॉमी से? पोल्यूशन का भी यही सेम रिलेशन हुआ, क्योंकि जब एयर प्योर है तो एयर प्योर में, हम प्योर एयर में जब सांस लेंगे तो उससे हमारे अंदर प्योर ऑक्सीजन जाएगी, जिससे क्या है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो फिर वही आ जाएगा कि हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। तो उसके बाद है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो टेक्नोलॉजी पे पड़ा है इस कोविड-19 का, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं नहीं जा पा रहे, काम पे भी नहीं जा पा रहे, तो हमारा सारा काम घर पे बैठ के टेक्नोलॉजी को यूज करके ही हो रहा है। आप लोगों ने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें था कि मेरा क्लासरूम मेरे घर का ही एक रूम है, जिसमें बच्चे अपने घर पे बैठ के ही अपना, उन्होंने एक ई लैब जैसे बना हुआ है, उस पे डिजिटली पढ़ भी रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, पेपर्स भी दे रहे हैं। वही सेम सिस्टम आज हम सामने देख रहे हैं। एज वी ऑल नो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो जब जरूरत पड़ी तो हमने ये चीज आज ही प्रैक्टिस कर ली, जबकि उन्होंने बात की थी 22nd सेंचुरी की, और वो चीज हमें आज ही देखने को मिल रही है कि हमारे बच्चे हमारी सराउंडिंग्स में सब घर पर बैठे ही पढ़ रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वो चीज तो ठीक है कि 22nd सेंचुरी से थी, मगर अगर हम जनरल देखें सारे कुछ में जो आई है, ये हमारी टेक्नोलॉजी 3 इयर्स एडवांस हो गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिनमें जिस चीज को इसने जन्म दिया वो है वर्क फ्रॉम होम कल्चर, डिजिटलाइज्ड एजुकेशन। अगर हम ऑनलाइन ना पढ़ पाते तो सोचिए अपनी एजुकेशन कहां जाती, वी लैग बिहाइंड, बहुत पीछे हो जाते। अगर हमारा 1 साल का गैप आ जाए एजुकेशन में तो वो हमें काफी पीछे कर देता है। और जो इन चीजों ने ऑनलाइन स्टडीज के कारण, जैसे मैं भी आपको लेक्चर दे पा रही हूं, क्योंकि सारा सिस्टम ही जब ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन स्टडी ने हमें इसके कैपेबल कर दिया कि हमारी एजुकेशन कहीं को सेटबैक ना लगे, हम फ्रीक्वेंटली अपना काम सारा करते रहें। और वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो ऐसा चला है कि कुछ कंपनीज ने यहां तक कर दिया कि उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि हम इसको 2021 दिसंबर तक अडॉप्ट करेंगे। और कुछ कंपनियों ने ये भी कर दिया, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शनल कर दिया कि अगर वो चाहे इस प्रैक्टिस को वो परमानेंटली कर सकते हैं, कि वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिजिटलाइज एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया कि सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है। और इन दोनों चीजों को एक चीज हमारे सामने आई, वो है कि एक बहुत बड़ी चेंज हुई है, दैट इज न्यू नॉर्मल टू आवर लाइफ्स। वो न्यू नॉर्मल क्या है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे, हम किसी से मिल नहीं पा रहे, मगर सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, हम अपने फ्रेंड्स को भी देख पा रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? कुछ एप्स सामने आई, वो है जूम, क्लाउड मीटिंग्स, जियो मीट, गूगल मीट एक्सेट्रा। ये सारी एप्स हैं, इनके जरिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी गेट टुगेदर कर रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी तो चल ही रही है इन एप्स की बदौलत।
और जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी पॉसिबल सिर्फ इन एप्स के कारण ही है। और ये सारी चीजों ने क्या किया, दिस ऑल पुश इंडिया टुवर्ड्स न्यू इंडिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज PPE, mask and sanitizer industry. Before coronavirus, we always used to practice कि हम जो अपनी PPE kits जितनी हमें जरूरत होती थी वो हम import करते थे। But due to coronavirus, there is a big crisis of PPE kits. There is no availability of PPE kits in the world. तो क्या हुआ कि इसने हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी अंडर मेक इन इंडिया कैंपेन। We start making PPE kits in our country, and within first 10 to 15 days we become self-sufficient in this PPE kits need. और क्या हुआ कि नई इंडस्ट्री डेवलप हुई, उससे क्या होगा, देखो जब कोई नई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो लोगों को काम तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में उनकी इनकम भी इंक्रीज करेगी। और पीपीई इंडस्ट्री के साथ साथ ही मास्क एंड सैनिटाइजर इंडस्ट्री, और जिसमें मास्क एंड सैनिटाइजर और साथ में आ जाती है जो अपनी वेंटिलेटर्स, ये इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। क्योंकि जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो उस चीज को बनाने का प्रयास तो हम करते ही करते हैं। तो जब हमें बाहर से मंगवाने में दिक्कत आ रही है तो हमने इन चीजों की इंडस्ट्री अपने देश में ही शुरू करी। तो इससे क्या हुआ कि हमने, और ये हमारा एक कदम था आत्मनिर्भर भारत की तरफ, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री हम अपने देश में डेवलप कर रहे हैं तो अपना देश तो आत्मनिर्भर बनेगा ही बनेगा। और इन सभी चीजों के दौरान ही हमारे जो चाइना के साथ इशू हुए तो हमें जरूरत पड़ी सब्स्टिट्यूट फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो वो भी हमने न्यू इंडिया के तहत मेक इन इंडिया में कैंपेन के अंडर हमने बनाने शुरू किए और हम उनको बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, अपने हर तरफ से प्रयास कर रही है कि वो कोविड-19 से फाइट कर सके और अपनी इकोनॉमी को भी उसके साथ मैचअप कर सके। इसके साथ क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है इन चीजों को करने के लिए, गवर्नमेंट इंक्रीज लिक्विडिटी, कट टैक्सेस, सपोर्ट एमएसएमईज, और एक और बैंक्स द्वारा एक और प्रैक्टिस की गई इसके लिए मॉरेटोरियम की। मॉरेटोरियम क्या होता है, मॉरेटोरियम में जो लोन्स की ईएमआई थी उसको 6 मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया ताकि जो बिजनेसमैन है उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज की जा सके। इसमें जो है सबसे पहले मैंने बोला जैसे इंक्रीज इसकी है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, लिक्विडिटी इंक्रीज करना। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हैं कि जब हमें लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है तो हम सबसे पहला ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ही करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ऑपरेशंस में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आ जाता है। तो गवर्नमेंट इस चीज की प्रैक्टिस करती है ताकि मार्केट में कैश रिलीज किया जा सके जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज हो। जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए होगी, इंटरेस्ट रेट लो करके की, मॉरेटोरियम के जरिए की। तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने हेल्प करी कि लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज हो सके, क्योंकि इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, इंक्रीज इन लिक्विडिटी को बढ़ाना जो होता है, अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उससे इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड होगी, और एग्रीगेट डिमांड होना मीन्स इकोनॉमी पुश होना, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तभी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है जो नई नई चीजें बनाएगा। तो इस चीज से भी इंपैक्ट आया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने टीडीएस कट किया। टीडीएस कट करने का भी मतलब यही था कि जो डिस्पोजेबल इनकम है कॉमन मैन की उसको इंक्रीज किया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होना भी अगेन लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड।
और उसके बाद जो किया, इंटरेस्ट रेट को कम किया बैंक्स ने. इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो डिक्रीज बाय बैंक्स सो दैट पीपल कैन टेक मोर लोन्स एंड स्टार्ट न्यू बिजनेसेस. न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करना मीन्स वोकल फॉर लोकल. ये इस कैंपेन की हेल्प करने के लिए लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि लोग अपने नए नए काम शुरू कर सकें और अपने नए काम शुरू करके एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकें और खुद की अच्छी इनकम जनरेट कर सकें. तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्या है, अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा पुश मिल सकता है. तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं. तो मैंने आपको इसके बुरे पार्ट को भी दिखाया और अच्छे को भी दिखाया. अब मैं इस अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी कि चाहे जो भी है हमने सारा पढ़ लिया, और फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन इट इज क्लियर that this pandemic has affected us enormously, but it can't affect our, again I am saying, it can't affect our spirit, our aspirations, and now it's time to heal the damage. वो कैसे होगा? It will happen with our collective efforts. We have to go hand by hand, और हमें सबको ये एक साथ होकर ही इस महामारी से बाहर निकलना है. अपनी जो रेलगाड़ी, अपनी अर्थव्यवस्था की रेलगाड़ी जो पटड़ी से उतरी है, उसको वापस से पटड़ी पर लाना है. तो अब इसी के साथ मैं इस टॉपिक को अपना खत्म करती हूँ. और अब मैं जो है इस टॉपिक के बारे में कुछ और भी थोड़ा सा बताऊंगी. वो क्या है कि ये जो है टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ये किसी भी पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है. ये टॉपिक आपको हर एक क्लास में इफेक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, चाहे वो +1 हो या +2 हो. +1 का पीपीसी भी हो सकता है, +2 का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हो सकता है इसमें. और जो मैंने अपने लास्ट एक्सपीरियंस से देखा, मैंने आपको बताया कि मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि जब भी कोई करंट टॉपिक होता है अपना, जो भी कोई करंट कैंपेन होता है, कुछ भी नया लॉन्च होता है, तो उसमें से हर साल एग्जाम में अपने पास एक क्वेश्चन होता है, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क में आए, 3 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, मगर एक क्वेश्चन आता जरूर है. और जब ये अपना इस बार का करंट टॉपिक है, तो श्योरली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, और ये आज की जो मेरी डिस्कशन है वो आपको हेल्प करेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो मैं आपको फिर से कहूंगी कि प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट and subscribe my channel for further videos that may be of syllabus based videos. And bye bye students, keep shining and smiling always. Thank you.